Hi everyone, this is the very first chapter of the revision series. In this PPT, we have summarized the whole chapter and it is complemented with the previous year questions after the analysis of at least 10 years. And let's start with. So, this chapter's heading is only what is democracy and why it is important. To understand why it is important, initially we have to understand what it actually is. Democracy can be defined as the form of government in which the rulers are chosen by the people of the country. What it says that you people, we people are responsible for the government that rules us. Okay? We make the rulers by casting votes. So it can be counted as a feature of the democracy as well, that democracy is the form of government in which the rulers, the people who rule us, are chosen by us only. Okay? So this definition can be a great start to your answers as well, whether the answer comes that define democracy. So it is the perfect definition for that as that also. You can use it. So in the previous slide, I told you that we people cast vote and we choose our own rulers. But there is a midline between that in India we have indirect elections. What does it mean? That people of India choose their representatives and then those representatives choose the head of the country. So basically in India we choose our ruler by indirect elections. And why we choose our own representatives, why it is so important? हम डायरेक्ट भी तो चूज कर सकते हैं, सीधा प्राइम मिनिस्टर के इलेक्शंस क्यों नहीं करवा देते हम लोग? मॉडर्न डेमोक्रेसीज इन्वॉल्व अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल. जैसे इंडिया इज कंसिडर्ड टू बी एज अ मॉडर्न डेमोक्रेसी एंड इंडिया की पॉपुलेशन है 140 करोड़ पीपल. So it is not practically possible and it is not physically possible for all of them to sit together and take a collective decision. सारे एक साथ बैठ के डिसीजन नहीं ले सकते हैं. Even if they could, अगर वो ले भी पाते, the citizens does not have the time, the desire or the skills. हमारे पास वो decision making skill नहीं है, वो desire नहीं है और ना इतना time है. That's why we choose representatives who are gonna represent us, our needs, our wants to the government. टू अंडरस्टैंड एनीथिंग बेटर वी हैव टू अंडरस्टैंड इट्स फीचर्स फर्स्ट. आपको उसके फीचर्स पता होने चाहिए, उसके बाद आप उस चीज़ को बेटर अंडरस्टैंड कर सकते हैं. तो फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी क्या है? वट इज़ द फर्स्ट फीचर? इन अ डेमोक्रेसी द फाइनल डिसीजन लाइज विद द पीपल. वाई आई एम सेइंग दैट? बिकॉज इफ़ यू लुक एट द केस ऑफ पाकिस्तान इन 1999 एक मिलिट्री कूप होता है पाकिस्तान के अंदर जिसमें जनरल मुशर्रफ होते हैं, वो एक मिलिट्री कूप को लीड करते हैं एंड देन ही डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट को वहाँ से हटा देते हैं और खुद वहाँ के प्रेसिडेंट बन जाते हैं. ही डिक्लेयर्स हिमसेल्फ द प्रेसिडेंट ऑफ द कंट्री एंड देन इन 2002 ही पासिस अ रेफरेंडम ऑल्सो एंड इंक्रीजेज हिज ओन टर्म बाय 5 years. उन्होंने अपना खुद का जो टेन्योर है उसको 5 साल से और बढ़ा दिया. इस लीगल फ्रेमवर्क को पास करने के बाद इलेक्शंस वर हेल्ड इन द नेशनल एंड प्रोविंशियल असेंबलीज एंड इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स वर ग्रांटेड सम पावर्स. अब ऑब्वियसली आपके रिप्रेजेंटेटिव्स हैं तो उनके पास कुछ पावर्स भी होंगी, बट द फाइनल पावर रेस्टेड विद मिलिट्री ऑफिसर्स एंड जनरल मुशर्रफ हिमसेल्फ. इवन दो वो कहने को वहाँ पे इलेक्शंस हो रहे थे, लोगों ने कास्टिंग की थी, उनके रिप्रेजेंटेटिव्स के पास पावर्स भी थी, बट द फाइनल पावर, द फाइनल डिसीजन मेकिंग पावर was in the hands of General Musharraf himself. Hence we can say or conclude that it was not a democratic country. जहाँ पे जो फाइनल डिसीजन मेकिंग पावर है वो लोगों के पास ना हो, उस कंट्री को आप डेमोक्रेटिक कंट्री नहीं बोल सकते. Thus we can conclude that in a democracy the final decision making power must rest with those elected by the people. The second feature of democracy is each adult citizen must have one vote and each vote must have one value. आपके हर वोट की, हर इंसान के वोट की एक ही वैल्यू होनी चाहिए. इन इंडिया व्हेन यू आर 18 प्लस, जब आप 18 या 18 साल से ज़्यादा के हो जाते हो, यू आर ट्रीटेड एज एन एडल्ट इन इंडिया. सो आपके वोट की वैल्यू उतनी ही है जितनी एक किसी इंडस्ट्रियलिस्ट या फिर किसी बिजनेसमैन के वोट की वैल्यू है. एक स्टूडेंट के वोट की वैल्यू, एक कॉलेज गोइंग स्टूडेंट की वोट की वैल्यू उतनी ही है जितनी एक इंडस्ट्रियलिस्ट की है. ओके, बट इट इज़ नॉट द केस इन एवरी कंट्री. लाइक जो कंट्री है फिजी, द इलेक्टोरल सिस्टम इज सच दैट द वोट ऑफ एन इंडिजीनियस फिजी हैज़ मोर वैल्यू देन दैट ऑफ एन इंडियन फिजिन. ठीक है, वहाँ पे वोट की वैल्यू अलग अलग है.
सेम हैपन्स इन सऊदी अरेबिया कि वहाँ पे वुमेन को तो वोट देने का राइट ही नहीं है. इवन दो इलेक्शंस तो वहाँ पे भी होते हैं, इलेक्शंस वहाँ पे भी हो रहे हैं, बट नॉट ईच वोट हैज़ द सेम वैल्यू एंड नॉट एवरीवन इज अलाउड टू वोट. But in India, each adult is allowed to vote and every vote has one value. So this is also another feature of democracy. Now let's understand the third point, the third feature. A democratic government rules within limits set by the constitutional law and citizens' right. हर democracy में citizens के कुछ rights होते हैं. आप उन rights को violate नहीं कर सकते. If we take the example of Zimbabwe, there was a party, the country has been ruled by the party that led the freedom struggle. ठीक है, पार्टी का नाम था ZANU PF. उसके जो लीडर थे रॉबर्ट मुगाबे हैज़ रूल्ड द कंट्री सिंस इंडिपेंडेंस. वो इंडिपेंडेंस से रूल करते हुए आ रहे थे. इवन इफ द इलेक्शंस आर हेल्ड, इलेक्शंस हो रहे हैं बट द इलेक्शंस आर नॉट फ्री एंड फेयर. ही इज़ यूजिंग मैल प्रैक्टिसेस एंड फ्रॉड्स टू विन द इलेक्शंस. देयर वाज अ लॉ दैट limited the right to criticize the president. Suppose you are not able to criticize the president even when he is not making the policies that are in favor of the people of the country. Okay, television and radio were controlled by the government and gave only the ruling party's version. आपको सिर्फ वही बात बताई जा रही है जो कि रूलिंग पार्टी के फेवर में है, बाकी चीज़ें आपको बताई नहीं जा रही. तो इट इज़ द वायलेशन ऑफ योर लॉ एंड इट इज़ अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ एज वेल. बट दिस डज नॉट हैपन इन डेमोक्रेसी. जिम्बाब्वे में चाहे इलेक्शंस हो रहे हों बट फिर भी इट वॉज नॉट कॉल्ड अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट. वाई? बिकॉज ऑफ द अनफेयर प्रैक्टिसेस. अब कुछ क्रिटिक्स के आर्ग्यूमेंट्स भी हैं अगेंस्ट द डेमोक्रेसी. वट आर दीज? द वेरी फर्स्ट वन इज इंस्टेबिलिटी एज लीडर्स कीप ऑन चेंजिंग. लीडर्स चेंज होते रहते हैं तो इससे कंट्री के अंदर इंस्टेबिलिटी आती है. सेकेंड वन इज करप्शन. एज इलेक्शंस के टाइम पे बहुत सारे मेल प्रैक्टिसेस और फ्रॉड्स होते हैं तो इट ऑल्सो लीड्स टू करप्शन. डिलेड डिसीजन मेकिंग. जब हम किसी कंट्री के डिसीजन में आते हैं, कोई डिसीजन का पार्ट बनते हैं तो इट इज़ अ वेरी बिग प्रोसेस. तो डिलेड डिसीजन मेकिंग भी होता है. लीडर्स डोंट नो व्हाट्स बेस्ट फॉर देयर पीपल. हर लीडर को ये नहीं पता होता कि एक स्पेसिफिक माइनॉरिटी या स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ पीपल को क्या उसका बेस्ट इंटरेस्ट है. नो स्कोप ऑफ मोरालिटी. डेमोक्रेसी इज ऑल अबाउट कॉम्पिटिशन, पावर प्ले. डेमोक्रेसी में सिर्फ पॉलिटिकल कॉम्पिटिशन और पावर प्ले होता है जिसमें मोरालिटी की कोई जगह नहीं होती. अब तुमने सीख लिया कि व्हाट इज़ डेमोक्रेसी. तुमने उसको सीख लिया, उसके फीचर्स देख लिए, उसके आर्ग्यूमेंट्स देख लिए. बट अब वाई डेमोक्रेसी? क्यों डेमोक्रेसी ही एक अच्छी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है? द वेरी फर्स्ट थिंग इज प्रोवाइड्स अ मेथड टू डील विद डिफरेंसेस एंड कन्फ्लिक्ट्स. कन्फ्लिक्ट्स जो होते हैं सोसाइटी के अंदर, ये उनसे एक बेटर वे में डील करने की हमें अपील देता है. लाइक इन एनी सोसाइटी पीपल आर बाउंड टू हैव डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियंस एंड इंटरेस्ट. ऑब्वियसली सबके होते हैं. These differences are particularly more in country like ours क्योंकि हमारे यहाँ पे ethnicity है, हमारे यहाँ पे अलग अलग cultures हैं, language है, caste हैं. The preferences of one group can clash with those of other groups. Democracy provides the only peaceful solution to this problem. In a democracy, no one is a permanent loser or winner. Different groups can live with one another peacefully. The second thing is it is an accountable form of government. आपकी गवर्नमेंट आपको लेके अकाउंटेबल है. इट हैज़ टू आंसर योर क्वेश्चंस दैट व्हाई एंड व्हाट हैपेंड टू द कंट्री इन द लास्ट 5 years. दे हैव टू गिव यू रिपोर्ट्स, दे हैव टू release press releases, and they have to give interviews in order to make you people aware of what's happening in the country, and it is an accountable form of government. Third one is as it is based on discussion and consultancy, it improves the quality of decision making. वन ऑफ द आर्ग्यूमेंट्स, हमने एक आर्ग्यूमेंट में पढ़ा था कि डिसीजन मेकिंग बहुत डिले हो जाती है, बट इट इज़ अ गुड एक्सपेक्ट ऑल्सो बिकॉज बहुत सारे लोगों से कंसल्ट होके डिस्कशन होके एक डिसीजन पे हम आते हैं, अराइव होते हैं, तो इट इज़ अ गुड पार्ट. फोर्थ, सपोज यू वोटेड टू पार्टी एक्स एंड दे डिडंट परफॉर्म वेल इन देयर टेन्योर. So after 5 years, you have the chance to cast your vote to any other party. This allows us, people, citizens of the country, to correct our own mistakes. So that is why democracy is a better form of government than dictatorship or monarchies. So we are basically done with all the important aspect of this chapter. There is one thing that I should mention here, that if the ideals of democracy are considered, then no country in this world is correctly democratic.
ऐसा ज़रूरी नहीं है कि जिस कंट्री में सारे फीचर्स हों डेमोक्रेसी के वो भी करेक्टली डेमोक्रेटिक हो. स्टिल हैविंग एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ डेमोक्रेसी एज एन आइडियल विल एक्सप्लेन वाई टू वैल्यू डेमोक्रेसी. आपको डेमोक्रेसी को वैल्यू क्यों करना चाहिए. इट इनेबल्स पीपल टू जज एन एग्जिस्टिंग डेमोक्रेसी एंड आइडेंटिफाई इट्स वीकनेस. जब तक आपको किसी चीज़ के बारे में पता ही नहीं है कैसे आप उसकी स्ट्रेंथ और वीकनेस का अंदाज़ा लगा सकते हो. इट इज़ नॉट पॉसिबल. सो डेमोक्रेसी के बारे में पता होना इज़ इम्पॉर्टेंट. इट ऑल्सो हेल्प्स अस टू डिस्टिंग्विश बिटवीन अ मिनिमल डेमोक्रेसी एंड अ गुड डेमोक्रेसी. एक तो होता है किसी के अंदर बस इलेक्शंस हो रहे हैं और मल्टीपल चॉइसेस हैं लोगों के पास, दे विल कंसिडर दैट थिंग एज डेमोक्रेसी. बट एक मिनिमल डेमोक्रेसी और एक अच्छी डेमोक्रेसी में आपको डिफरेंस करने के लिए डेमोक्रेसी को पढ़ना बहुत ज़रूरी है, उसको अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी है. द मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी इन टुडेज वर्ल्ड इज़ बीइंग रूल्ड बाय पीपल्स इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स. जब आपके ही इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स जिनको आपने इलेक्ट किया है वो आपको रूल करते हैं, इज़ द वर्ल्ड्स मोस्ट कॉमन डेमोक्रेटिक प्रैक्टिस. However, for a small community, there can be other ways of making democratic decisions. All people can sit together. कई जगह ऐसा भी होता है कि बड़ी बड़ी डेमोक्रेसी ना होके, ज़्यादा लोग ना होके, कुछ लोग होते हैं और वही बैठ के सारे डिसीजन लेते हैं, जैसे हमारे गांव में होता है ना. दिस इज़ हाउ द ग्राम सभा वर्क्स इन अ विलेज. Okay, so this chapter is now complete. We have analyzed the last 10-year question papers and we have got these 8 questions that are likely to be appear in the exam again. And these topics are very much favorite of all the institutions. So you can practice these 8 questions and if you have any doubts, you can leave them in the comment section and it will be replied there only. Thank you for watching this video. Please like and subscribe.